بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید ناظرین۔ آج آپ کے لیے میں انتہائی خوفناک، سنسنی خیز اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں، لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز سب سے پہلے ملیں۔ وہ موسم بہار کی خوشگوار صبح تھی۔ سردی نے جاتے جاتے سبھی زیرو کے علاوہ درختوں، پیڑوں اور جانوروں پر بھی گہرا اثر چھوڑا تھا۔ سبھی چمکتے سورج کی دھوپ سے محظوظ ہوتے ہوئے خداوند تعالیٰ کا شکریہ ادا کر رہے تھے۔ ہر چہرے پر مسرتیں رقصاں تھیں۔ اچانک ہی سحر کے وقت مغرب کی طرف سے کالی گھٹا اٹھی اور پل بھر میں پورے آسمان پر چھا گئی۔ بادل گرجے، بجلی چمکی اور ننھی بوندیں بارش کا روپ دھارنے لگیں۔ جلد ہی موسلا دھار مینا برسنے لگا۔ محلے اور گلیاں بارش کے پانی سے ندی نالے بنتے چلے گئے۔ صبح کی چمکیلی دھوپ پھر سے سردی میں تحلیل ہو گئی۔ ہر طرف سے موسم سرما کا گمان ہونے لگا۔ بیٹا، کھیتوں کی نگرانی اور پانی کے بارے میں پتہ کرنا تھا۔ گندم کی فصل میں پانی زیادہ نقصان دہ ہوا کرتا ہے۔ بارش اور کیچڑ کی صورت میں میرا گھر سے نکلنا دشوار ہے۔ تم جوان آدمی ہو، ذرا کھیتوں کا چکر تو لگاؤ۔ حاجی احمد علی نے اپنے بیٹے اکبر سے جیسے خواہش ظاہر کی۔ اکبر گھر سے نکل آیا تھا۔ وہ گیلی زمین میں سنبھل کر چل رہا تھا۔ ہر سو لہلہاتی بالیاں اپنی سوندھی خوشبو مہک سے سرشار تھیں، جھوم جھوم کر عجیب سا سماں باندھے تھیں۔ گندم کی آدھ پکی فصل خوشیوں اور بے قرار مسرتوں کی دلیل تھی۔ وہ ایک پگ ڈنڈی پر چلتا ہوا کھیتوں کے بیچوں بیچ ڈیرے پر پہنچا، جہاں بوڑھے برگد نیچے بیلنا لگا ہوا تھا جس سے گنے کا رس نکال کر گڑ بنایا جاتا تھا، مگر آج وہاں بھی بارش کی وجہ سے ویرانی کا سماں تھا۔ سبھی کام کرنے والے بارش کو دیکھتے ہوئے گھروں کو لوٹ گئے تھے۔ وہ چند لمحے وہاں رکا اور کسی تھامے گندم کی طرف بڑھ گیا، مگر اسے یہ دیکھ کر حیرانی ہوئی کہ گندم کی فصل میں ذرا بھی پانی نہیں، دوسرے سبھی کھلیان لبالب بھرے ہوئے تھے۔ اس نے حیرانگی سے اپنے لبوں کو ہلکی سی جنبش دی۔ پانی نشیبی فصلوں کو کیسے اور کس نے چھوڑا؟ ابھی وہ سوچ ہی رہا تھا کہ اس کے عقب سے نشیلی سی خوشبو کا جھونکا آیا، اس کی نس نس میں سمانے لگا۔ اس نے چونک کر پیچھے دیکھا۔ وہ ایک خوبصورت دوشیزہ تھی۔ تم کون ہو؟ ہاں میں محبوبہ۔ وہ ہنسی تو جیسے کلیاں سے کھل اٹھیں، ہر سو خوشبوئیں بکھر گئیں۔ میں عرصے سے آپ کی متلاشی ہوں۔ میرا نام محبوبہ ہے۔ میں اس برگد کے پاس رہتی ہوں۔ حاجی صاحب سے بھی میری گہری دوستی ہے، مگر میں تو کسی محبوبہ کو نہیں جانتا۔ اکبر نے نفی سے سر ہلایا تو بولی، اکبر، میں کب سے تمہاری چاہت میں جل رہی ہوں، مگر کبھی اظہار نہ کر سکی۔ آج ملے ہو تو پہلے تم یہ بتاؤ کہ کب سے یہاں ہو؟ اکبر نے پوچھا۔ بہت ہی لمبے عرصے سے میرا یہیں بسیرا ہے۔ وہ ابھی تک ہنس رہی تھی۔ مجھے پتہ تھا حاجی صاحب آج نہیں آ پائیں گے اور گندم کی فصل کھڑے پانی سے خراب ہوگی، تبھی میں نے تمام فصلوں سے پانی نشیبی فصلوں کو چھوڑا۔ اچھا، اکبر کے لہجے میں طنز بھرا ہوا تھا۔ تم حاجی صاحب کو کب سے جانتی ہو اور انہیں کبھی اپنے بارے میں بتایا ہے؟ نہیں، مگر وہ اپنی زبان سے کئی بار اقرار کر چکے ہیں کہ آج کام دوگنا ہوا ہے، جیسے کئی آدمیوں نے مل کر کیا ہو۔ اچھا، تو اب مجھ سے کیا چاہتی ہو؟ وہ کسی کو زمین پر رکھے دستہ اوپر کرتے ہوئے اس کی پلیٹ پر ایسے بیٹھ گیا کہ اس کی کمر دستے کے ساتھ لگی ہوئی تھی اور پاؤں زمین پر، مگر اسے یوں محسوس ہونے لگا جیسے وہ لوہے پر نہیں، کسی نرم فوم کے گدے پر براجمان ہو۔ دوستی اور محبت چاہتی ہوں۔ جب سے تمہیں دیکھا ہے ایک پل بھی تمہارے بنا گزارنا مشکل ہے۔ وہ ایک ہی سانس میں بولتی چلی گئی۔ دیکھو جی، محبت کرنا اس قدر آسان ہے جیسے مٹی پر مٹی سے مٹی لکھنا، اور نبھانا اس قدر مشکل جیسے پانی پر پانی سے پانی لکھنا۔ نہیں، میں ہر مشکل کو آسانی میں بدل سکتی ہوں۔ محبوبہ نے اکبر کی بات درمیان سے کاٹتے ہوئے کہا، میں آپ کو ہوا سے ہوا میں ہوا لکھ کر دکھا دوں گا۔ اوہ، تم تو بہت گہری باتیں کرنے لگیں۔ خیر، مجھے تو کھیت دیکھنا تھے۔ اکبر خاموشی سے اٹھ کر واپس جانے لگا تو وہ بھی اس کے ساتھ ہو لی۔ کھیتوں کی پگڈنڈیوں سے نکل کر ریلوے لائن پر آئے تو اکبر نے پوچھا، تم کہاں جا رہی ہو؟ میں تمہارے ساتھ تمہیں گھر چھوڑنے جا رہی ہوں۔ نہیں، تم جاؤ، میں چلا جاتا ہوں۔ اب اس وقت میرے ساتھ تمہیں کوئی دیکھے گا تو خواہ باتیں ہوں گی۔ بستی کے لوگ تو بات کا بتنگڑ بنا دیتے ہیں۔ اکبر نے گویا سمجھانا چاہا، میں کسی کو نظر آؤں گی تو باتیں بنیں گی نا؟
वो मायने खेज लहजे में बोली। अभी वो बातें करते हुए दरगाह के पास पहुँचे ही थे कि उनके सामने यकदम ही आग का बगोला सा उभरा और आसमान की बुलंदियों को छूने लगा। अकबर ने हवास बाख्ता होकर पीछे देखा तो महबूबा गायब थी। वो यकदम ही घबरा गया, सांसें तेज़ हो गईं और वो बोझल वजूद और थके कदमों से बमुश्किल घर पहुंचा। जाते ही पलंग पर गिर सा गया। उसका पूरा बदन थर थर कांप रहा था, लब खामोश थे, उस पर गुनूदगी सी छाई हुई थी, उसे कोई होश न रहा। जाने कितनी देर बाद अकबर के हवास ज़रा बहाल हुए थे। तबीयत संभली तो महबूबा की बातें उसके कानों में बाज़गिश्त करती हुई महसूस हुईं। आग का लाव उसकी निगाहों के सामने गर्दिश करने लगा। उसे अब ज़रा सा डर महसूस हो रहा था। उसने सर झटकार उठकर हकीम साहब की तरफ रवाना हुआ। अकबर के बीए के पेपर्स थे, तभी सभी क्लास फेलोज़ हॉस्टल के कमरों में शब गए तैयारी में मगन थे। अचानक अकबर के कमरे में जुगनू से चमकते हुए इधर उधर उड़ने लगे। खुशबू के खुशगवार एहसास पर उसे यूँ महसूस होने लगा जैसे इस पर गुनूदगी सी छाने लगी है, कोई उसकी आंखों को बंद कर रहा हो। उसे अजीब सी बेचैनी होने लगी। फिर उसे अपनी आंखों पर किसी के हाथों का लम्स महसूस हुआ। उसने अपनी आंखें मसलना चाहीं तो किसी के नर्म और नाजुक हाथ उसके हाथों से मस हुए। कौन हो तुम? वो ज़रा सा गड़बड़ा गया। मैं आपकी महबूबा। नर्म व मुलायम और शीरी आवाज़ का तरन्नुम सा बिखरा। तो तुम मेरे पीछे यहाँ भी? उसने चपाक से अपनी आंखें खोलकर उसे देखा। अकबर, ये तो लाहौर है। आप सात समुंदर भी पार चले जाएं तो पल भर में आपके पास पहुँच सकती हूँ। अच्छा, इससे साबित हुआ कि तुम्हारा वजूद इंसानों जैसा हरगिज़ नहीं है। अकबर के इस सवाल पर कमरे में चंद लम्हे गहरी खामोशी छा गई। वो खामोशी से वहाँ से उठा और यूनिवर्सिटी के खूबसूरत लॉन में चला आया। हाँ तो मोहतरमा, अब तुम अपने बारे में वजाहत से बताओ, कौन हो तुम और क्या चाहती हो? अकबर, मैं परीज़ाद हूँ, परिस्तान से यहाँ आना हुआ। तुम्हारे गांव में शाम हो गई। मुसाफिर का रूप धार कर एक दरवाजे पर दस्तक दी। खुशकिस्मती से दरवाज़ा हाजी साहिब नहीं खोला। हुक्म करो बेटी, किससे मिलना है? इन्होंने बेकरां प्यार और नरमी से पूछा था। बाबा जी, मैं मुसाफिर हूँ, शाम गहरी हो रही है और अब भूख भी लगी होगी तुम्हें। इन्होंने मेरी बात मुकम्मल होने से कबल ही कह दिया। मेरी खामोशी और नीची निगाहों को भांपते हुए बोले, अंदर आ जाओ बेटी। फिर मैं उनके अकब में चलती हुई घर में दाखिल हो गई। बैठो बेटी। इन्होंने इशारा किया और ख़ुद अंदर की तरफ बढ़ गए। चंद लम्हों बाद इन्होंने कपड़े से ढका खाना लाकर मेरे सामने रख दिया। लो बेटी, पढ़ो बिस्मिल्लाह। मैं खाना खाने में मसरूफ़ हो गई। मैंने खाने के बर्तन से कपड़ा उठाना चाहा। ना बेटी ना, खाना ढका रहे तो बरकत बरकरार रहती है। मेरा हाथ ज्यों का त्यों रुककर सिर्फ एक रोटी तक उठ सका, मगर मैंने सैर होकर खाया। ये बिस्मिल्लाह की बरकत थी कि ना तो खाना ख़त्म हुआ, ना ही मेरा जी और खाने को चाहा। हालांकि हम खाने पर आएँ तो मन्नों के हिसाब से खा जाया करते हैं। हाजी साहब का इखलाक और किरदार देखकर मैंने कुछ अरसा इंसानों के दरमियान रहने का फ़ैसला किया। यहाँ के कब्रिस्तान में मेरी जैसी बहुत सी मखलूक पहले ही आबाद थी। तभी नज़र दौड़ाते हुए मैंने अपने क़याम के लिए बूढ़े बरकत का इंतखाब किया। खुशकिस्मती से ये जगह थी हाजी साहिब की ज़ाहिर हुई। छोटे बच्चे होने पर मेरे दिल में हाजी साहिब की मदद करने का जज्बा बेदार हुआ। मैंने रात दिन का काम रात के अंधेरे सुबह के उजाले में तब्दील होने से पहले ही मुकम्मल करवा दिया है। बस उसी वक्त से मेरा और तुम्हारे घर का साथ है। ये सब ठीक है, मगर इंसानों और परियों का क्या ताल्लुक़? अकबर ने बगौर उसकी निगाहों में झांका। कई लम्हे खामोशी की नज़र हो गए। फिर वो बोली, अकबर, मोहब्बत एक लाफानी जज्बा है जो ऊंच नीच, इंसान, हैवान, चिरिन परिन, हत्ता के खूनी दरिंदों को भी नहीं देखा करती। मेरा प्यार हो तुम, मेरी वफ़ा तुम से है, मेरा सुकून तुम हो, मेरी सोच का महवर, मेरे तसव्वुरात का हासिल और ख्वाबों का मस्कन तुम ही हो। मगर ज़िंदगानी के इस सफ़र में साथ चलते हुए किसी भी लम्हा तुम उड़कर पानियों के उस पार जा खड़ी हो गई तो? नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैं पार उतरी तो पानी पर चलने को तुम्हारे लिए रास्ता दूंगी। मैं तुम्हारे हिस्से की सभी सख्तियाँ अपने वजूद पर सह लूँगी, मगर तुम्हें सर्द गर्म हवा से ज़रूर महफूज रखूँगी। मगर आतिशी और खाकी मखलूक की संगत नामुमकिन है। मेरे सामने सहरा का सफ़र है, तुम्हारे लिए लम्हों का। दिल ज़रा भी मान नहीं रहा इस रिश्ते को। तुम्हारी हाँ से फासला भी तुम्हारे लिए पल भर का बना दूँगी। मुझ में इतनी कुव्वत है कि अब आज ही की रात मुशाहिदा कर लेना। तुम्हारा पेपर तुम्हारे सामने आएगा।
सुबह देख लेना वही सवालात होंगे, वो तुम्हारी निगाहों के सामने होंगे। हैं, ऐसा हुआ तो मैं तुम्हारी मोहब्बत ज़रूर कबूल करूँगा, अकबर ने हंसते हुए कहा। तो महबूबा ने अपना हाथ आगे बढ़ाया, जिसे अकबर ने खामोशी से थाम लिया। दोनों में मुस्कुराहटों का तबादला हुआ। इधर क्लास फेलोज़ अकबर को तलाश करते हुए वहाँ आए तो वो उठकर धीरे धीरे अकबर की निगाहों से ओझल होती चली गई। शब के पिछले पहर ऊँग आने पर पेपर्स अकबर के सामने थे। उसने सभी सवालात ज़हनशीन कर लिए। सुबह उसी पर्चे का अक्स जूं का तूं अकबर के सामने था, जिसे लिखने में उसे ज़रा भी घबराहट महसूस न हुई। यूँ वो उम्दा नंबर्स के साथ कामयाब हो गया। बीए के बाद अकबर गांव चला आया और उसने बूढ़े माँ बाप के साथ खेतों में हाथ बटाना शुरू कर दिया। उधर महबूबा से दोस्ती मोहब्बत के दरवाह हुए तो रोज़ाना मुलाकातों ने जन्म लिया। वो अकबर के सभी काम खुश असलूबी से सरअंजाम देने लगी। अब काम अकबर के जहन में होता, उधर उस पर अमल होने लगता। दोनों के दिन ईद और रात शब बारात की मानद गुजरने लगे। हर सू जैसे मुसरतें रक्सा हो गईं, फसलें भी लहलहाती हुई दोगुना होने लगीं। गुज़रे वक्त के साथ परीज़ात महबूबा मुकम्मल तौर पर अकबर के वजूद और दिलो दिमाग पर हावी हो चुकी थी। अब वो उसे अपनी मर्ज़ी और इशारे से चला रही थी। उसकी मर्ज़ी होती तो वो उसे लोगों से मिलने और अच्छा बोलने देती। अगर महबूबा की मर्ज़ी या रज़ामंदी ना होती तो अकबर लोगों को अपनी सुर्ख आंखों से ज़्यादा घूरता कि उन्हें दोबारा अकबर की तरफ देखने की हिम्मत न होती। इस सूरत हाल को देखते हुए हाजी साहिब ने अकबर की शादी का फ़ैसला किया। कुछ लोगों ने तावीज़ कंधे की तजवीज़ दी, मगर अकबर मुकम्मल तौर पर महबूबा के हिसार में था। वो अपनी मर्ज़ी से एक भी कदम नहीं उठा सकता था। एक दिन उसकी तबीयत नॉर्मल देखकर बाप ने उससे शादी की बात की तो अकबर ने शर्मा कर कहा, बाबा जी जैसे आपकी मर्ज़ी। एक रोज़ अकबर अपने खेत की मंडेर पर अपने ही ख्यालों में चला जा रहा था कि सामने बेरी की नरमो नाजुक शाखों पर कुछ बच्चे अटखेलियाँ करते नजर आए। ओए गिर जाओगे, उसके मुंह से बेसाख्ता निकला। अगले ही लम्हे खाली शाखें हवा के दोष पर लहराने लगीं। वो बच्चे वहाँ से गायब हो गए थे। अकबर के तो आसान खता हो गए, पाँव बोझल होकर लड़खड़ाने लगे। तुम डर गए? महबूबा उसे अपनी बाहों के हिसार में जकड़े बुरी तरह खिलखिलाकर हंस रही थी। उसने अपने पूरे ज़ोर और गुस्से से अपना आप छुड़ाना चाहा, मगर कहाँ, वो ऐसा नहीं कर सका। महबूबा ने मुस्कुराते हुए उसे खुद ही आज़ाद कर दिया। तभी वो कुछ कदम दूर जा खड़ा हुआ। महबूबा हंसती हुई उसके करीब आ गई, उसका हाथ थामकर उसे दिलासा देने लगी। अरे मैं तो तुमसे मजाक कर रही थी, तुम तो सचमुच डर गए हो मुझसे। महबूबा की हंसी थी कि गोया कुछ जल तरंग बजते थे, लेकिन आज अकबर को हिम्मत करना थी। उसने परी से साफ कह दिया अपनी बरादरी और बुज़ुर्गों की ख्वाहिश। अकबर ने उसे सब बता दिया कि मेरे ख़ानदान वाले मेरी शादी करना चाहते हैं। ये सुनकर महबूबा के चेहरे पर गम के साए छा गए, लेकिन कहने लगी, ठीक है अकबर, मगर शादी ज़रूर करो। सुहाग रात को मैं तुम्हारी बीवी के वजूद में जलवागर होंगी। तुम्हें पता है ना, मैं नामुमकिनात को मुमकिनात बना सकती हूँ। वजूद तुम्हारी बीवी का ही होगा। अकबर ने कुछ बोलना चाहा, मगर महबूबा ने बात काट दी। हाँ, वही तुम्हारी बीवी होगी जिससे तुम्हारा निकाह होगा। मैं तुमसे जुनून की हद तक प्यार करती हूँ और करती रहूँगी। जब तक तुम्हारे दिल में किसी और का तसव्वुर नहीं उभरेगा, मैं तब तक तुम्हारे दिल में रहूँगी। हमारी राहें तब जुदा होंगी जब तुम मुझसे बिछड़ने की तमन्ना करोगे। ये कहकर वो दूर खड़े कीकर के उस पेड़ को तकने लगी जिस पर शाखें थीं न पत्ते। उसके चेहरे पर हवाइयाँ सी उड़ने लगीं। कुछ ही अरसे के बाद अकबर की शादी की रसूमात धूमधाम से अंजाम पाईं। सभी चेहरे से शादमान दिखाई दे रहे थे, कोई भी अनहोनी नहीं हो पाई थी। निघत अकबर के दूर पार के चचा की बेटी उसके अक़द में आई थी। पूरी बरादरी शादमां थी। अकबर भी इस शादी में शामिल होने की कोशिश तो कर रहा था, मगर दिल में अजीब सा डर था। रात को वो अपने कमरे में आया तो कमरा खूबसूरती से सजा हुआ था। दुल्हन हुजला-ए उरूसी में महवे इंतज़ार थी। जैसे ही उसने दुल्हन का नकाब पलटा, दिलनशी मुस्कुराहट के साथ महबूबा ने उसका स्वागत किया। वो लम्हा भर को भूंजका रह गया। बेड से उठकर जाने की कोशिश की, मगर दुल्हन ने उसका बाजू थाम लिया। मुझसे ऐसी कौन सी गलती हो गई जो आप मेरा चेहरा देखते ही वापस जा रहे हैं? आवाज़ नई नवेली दुल्हन निघत ही की थी। चेहरा महबूबा का था। वो तो हैरान परेशान इस सूरत हाल को जानने की कोशिश में था। वो भला क्या जवाब देता
चुपके से बेड पर बैठता चला गया। कुछ देर तो निघत से बातें करता रहा, फिर उसे पता ही न चला कि उसने निघत से क्या कहा और शब कैसे गुजरी। सुबह मौज़िन की आवाज़ सुनाई दी तो जैसे उसे होश आया। इस दौरान कमरे का रोशनदान छनाके से टूटकर बाहर गली में जा गिरा। उस वक्त उसे शब भर की पूरी हकीकत का इल्म हो गया। वो अपनी बीवी के पास ही मौजूद था। वो सोचों की गहराइयों में उतरता चला गया। रात निघत के जिस्म पर महबूबा के चेहरे का ख्याल उसके दिलो दिमाग को मुंतशिर करता चला गया। वो सोच कर रह गया कि आतिशी और खाकी मखलूक का भला क्या जोड़। महबूबा हवाओं में कलाबाजियाँ लगाकर मीलों का सफ़र पल भर में तय करने वाली मखलूक और इंसान ज़मीन पर रेंगने वाले कीड़ों की मिसाल थी। भला इनसे इनका क्या मिलन। सताज अब तो उठ जाएं, ज़्यादातर मेहमान जाग चुके हैं। बीवी की आवाज़ सुनकर अकबर की सोचों का सिलसिला टूट गया। चंद दिन के बाद अकबर बेहद खुश था। शादी के चंद ही माह बाद उसे करीबी शहर में लेक्चररशिप मिल गई थी। ख़ानदान भर में खुशियाँ मनाते हुए वो मिठाइयाँ बांट रहा था। एक बुर्कापोश खातून भी लोगों के साथ मौजूद मिठाई के लिए हाथ आगे बढ़ा रही थी। अकबर उस नर्म नाजुक हथेली पर मिठाई रखते हुए बोला, दुआ करें खुदा मुझे चांद सा बेटा दे। बुरके में मौजूद महबूबा को यूँ लगा जैसे उसके वजूद पर गिरां बोझ डाल दिया गया हो। उसने तैश में आकर मिठाई हवा में यूँ उछाली कि बारिश की सूरत ज़र्रा ज़र्रा होकर घर के पूरे आंगन में बिखर गई। फिर गज़बनाक चीख मारकर बैरूनी दरवाज़ा अबूर कर गई। अकबर दिल थाम कर नीचे बैठता चला गया। किस कदर कठिन लम्हात थे वो। अकबर उसी लम्हे उसकी पाबंदी में कही बात और चीज़ मांग रहा था जो उसे कतई गवारा नहीं थी। वक्त ज़रा आगे बढ़ा, माह साल गुजरने लगे। अकबर अपने फ़राइज़ को शसलूबी से सरअंजाम दे रहा था। सभी मज़ारे भी अपनी अपनी ड्यूटियाँ निभा रहे थे। महबूबा निघत के रूप में उसके संग संग ही रहती थी। अकबर समझ न पाता कि वो अपनी बीवी से क्या बात करे। कभी कभी यूँ होता कि अकबर कॉलेज के क्लासरूम में लेक्चर देते हुए जाने किन ख्यालों में खो जाता। बातों का मौजू बदल जाता जिससे उसकी साख मुतासिर होने लगती। बदनामी के डर से उसने मुलाजिमत छोड़ दी कि महबूबा हर पल उसके संग रहती। रफ्ता रफ्ता अकबर महबूबा और बीवी की दोहरी ज़िंदगी से बेजार होने लगा। उसे कोई चैन और सुकून नहीं था। एक रोज़ वो खेतों से वापस लौट रहा था कि सौंधी और खुशगवार खुशबू से महबूबा की आमद का एहसास हुआ। आज उसकी सूरत उजड़ी उजड़ी और गुस्से से भरपूर महसूस हो रही थी। वो उसके मुकाबले आ खड़ी हुई और बोली, मैंने कहा था ना अकबर, जिस रोज़ तुम्हारे दिल में औलाद की ख्वाहिश जन्म लेगी वो मेरी या फिर तुम्हारी ज़िंदगी का आखिरी रोज़ होगा। हम आतिशी मखलूक अपने दरमियान तीसरे वजूद को बर्दाश्त नहीं कर सकते। तुम्हारे दिल में बाप की शफ़क़त गालिब आ रही है। और तुम दरबार पर भी गए थे ना औलाद की खुशी मांगने। ये मुझे हरगिज़ कबूल नहीं। मैं तुम्हें जलाकर खाकिस्तर कर दूंगी या अपने आप को ख़त्म कर दूंगी। महबूबा की शक्ल सूरत गज़बनाक हो रही थी। पूरा वजूद गुस्से से लरस रहा था। महबूबा, तुम शायद भूल रही हो कि इस कायनात पर अल्लाह की हाकमियत है जो मशरिक़ से मगरिब तक कायम है। उसके कब्ज़ाए कुदरत में मेरी और तुम्हारी जान है। तकब्बुर, गुरूर और खुदाई का दावा तो फ़िरौन, नमरूद और शदाद जैसे काफिरों ने भी किया था, मगर वो सभी नीस्तो नाबूद हुए। खुदावंदे करीम ने अपनी हाकमियत बरकरार रखते हुए ज़माने के लिए उन्हें इबरत का निशान बना दिया। तुम भी अपने घुमंड, गुरूर और अपनी ताकत को आज़मा लो। मेरे लिए मेरा अल्लाह ही काफ़ी है। महबूबा की आंखें सुर्ख अंगारा हो गईं। अच्छा, तुम मेरा करिश्मा देखना चाहते हो? उसने तकब्बुराना अंदाज से कहा, अपने मुंह को फसलों की तरफ करते हुए फूंक मारी जिससे हर तरफ आग ही आग भड़क उठी। अकबर परेशानी के आलम में ज़मीन पर बैठता चला गया। हाथ बेसाख्ता दुआ के लिए उठे। ए मेरे मौला, मेरे परवरदिगार, मुझे तुझ पर भरोसा है। इस ज़मीन पर जब भी कोई फ़िरौन पैदा हुआ तूने मूसा अलैहिस्सलाम को भेजा। आज अगर तूने मेरी मदद न की तो कुफर गालिब होगा, जुल्म बढ़ता रहेगा। उसकी पलकों से आंसू निकल रहे थे। फिर आने वाहिद में आसमान पर काले स्याह बादल छा गए। देखते ही देखते मूसलाधार बारिश होने लगी जिससे महबूबा की लगाई आग बुझ गई। गुरूर, तकब्बुर ज़ाहिल हो गया। वो लड़खड़ाते कदमों से भागना चाहती थी, मगर अकबर ने भागकर सुलगती हुई लकड़ी उठाई, खुदा का नाम लेकर उसकी तरफ उछाल दी। महबूबा के वजूद से टकराते ही आग लग गई और फिर जल्द ही आग के शोले आसमान की बुलंदियों को छूने लगे। उसे अपने कदम पर खड़ा होना दुश्वार सा हो गया।
پھر وہ لڑکھڑا کر گر پڑی۔ ہڈیوں کا ڈھانچہ نکل آیا جس پر بہت سے کوے اور چیلیں اڑنے لگیں۔ اکبر دعا ہی کی صورت میں زمین پر سجدہ ریز ہوتا چلا گیا۔ پھر اسے کچھ خبر نہ رہی۔ جب اس کے آسان بحال ہوئے تو وہ اپنے گھر میں موجود تھا۔ اس واقعے کو کئی سال گزر چکے ہیں۔ اکبر کے 3 بچے ہیں اور وہ اپنے بچوں کے ساتھ خوشگوار زندگی گزار رہا ہے۔ اس کی زمینیں آباد ہیں۔ وہ روزانہ نگرانی پر قرآن مجید کا ورد اور تلاوت کرتے ہوئے چکر لگاتا ہے۔ محبوبہ کا حیالہ کبھی کبھار اس کے سامنے نمودار ہوتا ہے، مگر نادم، پریشان اور مایوس سا اس کی نگاہیں جھکی جھکی اور شرمندہ سی ہوتی ہیں، جیسے اس نے کوئی بہت بڑا جرم کیا ہو۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ انسان کو کبھی کسی غیر مرئی مخلوق کی محبت قبول کرنی چاہیے یا پھر اپنے بزرگوں کی باتوں پر عمل کرنا چاہیے؟ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کی کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔